ضلع شوپیاں میں گزشتہ رات سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک مختصر انکاؤنٹر ہوا۔ یہ انکاؤنٹر شوپیاں کے مولو چیترا گام علاقے میں ہوا۔ انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ اور ایک تویرا گاڑی کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ اسی گاڑی کا ڈرائیور ہے جس میں ملیٹنٹ سوار تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی خبر کے بعد فورس نے علاقے کا محاصرہ کیا تھا۔ اس دوران ملیٹنٹوں نے فورس پر فائرنگ کی۔ دونوں جانب سے کچھ وقت تک گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ بعد میں انکاؤنٹر کے مقام سے فورسز نے ہلاک شدہ ملیٹنٹ اور تویرا گاڑی کے ڈرائیور کی لاشیں برآمد کی۔ ہلاک ہوئے ملیٹنٹ کی شناخت پنویا کلگام کے فردوس احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ دوسری لاش کی شناخت ریڈونی کھڈونی کلگام کے سجاد احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق سجاد ملیٹنٹوں کا متحرک اعانت کار تھا۔ اس بیچ ضلع کلگام میں موبائل انٹرنیٹ خدمات کو معطل کیا گیا ہے۔ ڈگری کالج کلگام آج دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جنوبی کشمیر میں اننت ناگ کے مٹن چوک میں پراسرار طور پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ اس کی پہچان ایس پی او نذیر احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ اسے فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد میں اسے مزید علاج کے لیے سری نگر کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ راجناتھ سنگھ نے وزیر دفاع کی نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا کے سب سے اونچے جنگی محاذ سیاچن کا دورہ کیا۔ فوجی سربراہ جنرل بپن راوت سمیت فوج کے دیگر اعلی افسران راجناتھ سنگھ کے ہمراہ تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سیاچن بیس کیمپ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے جنگی یادگار پر ملک کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے شہیدوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر راجناتھ سنگھ نے فوجی جوانوں سے بھی خطاب کیا۔ راجناتھ سنگھ نے بہادر جوانوں کے جذبے کو سلام کیا اور کہا کہ ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے سیاچن میں تعینات فوجی جوانوں پر انہیں فخر ہے۔ اس موقع پر فوج نے وہاں کی سرگرمیوں سے وزیر دفاع کو واقف کرایا۔ وہی سوابھمان کی بھاونا ہے کہ کٹھن پریستھتیوں میں بھی لڑنے کا جوجھنے کا آپ کا سرئی کو جذبہ بنا ہے۔ اور میں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ آج مل کر آپ لوگوں سے میں واپس ہو رہا ہوں جا کر میں بھی آرمی چیف صاحب کو میں کہہ رہا تھا اور سیکرٹری صاحب کو میں کہہ رہا تھا، میں تو جن جوانوں سے مل رہا ہوں ان جوانوں کے گھر پر میں سویم اپنے ہستاکشر سے ایک پتر بھیجوں گا۔ میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں، میں پورا اپنی طرف سے آپ سب کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ماتا پتا کا بھی ابھیندن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہ آپ جیسے بہادر لال پیدا کیے۔ دھنیہ واد۔ کرگل کے بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری نگر میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ انہوں نے یہاں سیکیورٹی سمیت دیگر امور کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاست سے جڑے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈی جی پی دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ ریاست سے جلد ہی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ڈی جی پی نے پونچھ دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی کشمیر میں چند ملیٹنٹ موجود ہیں اور جلد ہی ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ کشتواڑ میں پریہار بردرز کے قتل کیس سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ جانچ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر دلباغ سنگھ نے مینڈھر میں ایس ڈی پی او دفتر کی تعمیر نو شدہ عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ ڈی آئی جی پونچھ رینج وویک گپتا، ایس ایس پی پونچھ رمیش انگروال اور ایس ڈی پی او مینڈھر نیرج پڑیار بھی اس دوران موجود تھے۔ تھوڑا بہت ایلیمنٹ کافی لمبے عرصے سے موجود تھا اور جو ایلیمنٹ وہاں پر موجود تھا اس کے ساتھ کوئی 2-4-5 لوگ اور جڑے ہیں جنہوں نے کوشش کری ہے کہ وہاں پر ان کی تعداد بڑھے، مگر ہماری کوشش ہے کہ اس تعداد کو جلد ہی کم بھی کر دیں گے اور ختم بھی کر دیں گے اور اس علاقہ میں بھی ملٹنسی جو ہے اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ سر پریہار بردرز اور جو آر ایس ایس لیڈر کی ہتیا ہوئی تھی اس میں سر ابھی کہاں تک پہنچی؟ ان کیسز میں لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ تفتیش ان کی مکمل ہونے تک ہے، کیونکہ اب تفتیش دوسری ایجنسی کر رہی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا،
मगर उसमें जो अक्यूज लोग थे लगभग उनकी सबकी पहचान हो चुकी थी और अभी बाकी कार्रवाई जो है वो एजेंसी से बता। बड़ी तादाद में हम लोगों ने जो ड्रग्स हैं उसको पकड़ा है। उसकी कुछ तारें जो हैं वो रिजौरी पुंछ की तरफ भी जुड़ रही हैं। हमें पता है कहाँ से शुरू होता है, कौन उसमें शामिल है। उनकी तरफ से कंजा कसने की कार्रवाई और तेज हो गई है और चंद दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि जहाँ से भी कुछ लोग उस तरह के उठाए जाएंगे। कस्बे पुलवामा के मोरन चौक में हालिया दिनों पेश आए पुरतशद्दुद वाकयात में पलट लगने से एक गैर रियासती मजदूर दोनों आंखों की बीनाई से महरूम हो गया है। सहनबाज नामी ये मजदूर बिहार से ताल्लुक रखता है। वो उस वक्त पुलिस और मुश्तिल अफराद के दरमियान हुई झड़पों की जद में आ गया था जब जुमे की नमाज अदा करने के बाद राशन लेने गया था। सहनबाज की दोनों आंखों में पलट लगा है। सहनबाज के भाई का कहना है कि वो दोनों भाई यहाँ मजदूरी के लिए कश्मीर आए थे। इस वाकये से वो बेरोजगार हो गए हैं और उसके इलाज के लिए भारी रकम दरकार है। मैं इधर आया था काम करने के लिए मजदूरी, और मैं जुमा पढ़ने गया। जुमा पढ़ के आ रहा था तो मुझे पता नहीं था ये पत्थर चलता। शांत होता मैं आया चावल लेने को। चावल लेने गया, बोला कि 5 मिनट के बाद आना। तो मैं वहाँ पे बैठ गया तो मैं पत्थर चलने लगा था तो हमें भागा तो शांत हो गया। मैं वापस आ रहा था। मैं मजबूर हूँ। मैं 2 ही भाई हूँ और 3 बहन है। घर तो हमारा बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता। मैं चाहता हूँ इसकी आंखों की तो रोशनी चली गई, इधर इलाज नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ इसको घर ले जाऊँ और इसका ऑपरेशन करूँ। ऑपरेशन में बहुत सारा खर्च पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि मुझे हेल्प मिले गवर्नमेंट से भी, और आम जनता पब्लिक भी अगर चाहती है मुझे हेल्प करने के लिए तो हेल्प करे। मैं मजबूर हूँ, बेरोज़गार हूँ। मैं इसके चक्कर में मैं भी इधर आया हूँ, मैं भी बेरोज़गार हो गया। अब इसका आंखों के इलाज के लिए बहुत पैसे मुझे लगेंगे। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल केस में बहस मुकम्मल हो गई है। पठानकोट सेशन अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है। अदालत 10 जून को इस केस का फैसला सुना सकती है। गवाहों की पेशी के बाद आज वकीलों की बहस खत्म हो गई। तकरीबन 1 साल से चल रहे इस केस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। दिफाई वकीलों के मुताबिक इस केस में 114 गवाहों से जिरह की गई है। टोटल 114 प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस प्रोड्यूस किए थे, जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस वालों ने की। उसके बाद डिफेंस की तरफ से भी रिस्पेक्टिव एक्यूज्ड की तरफ से नंबर ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए, डिफेंस विटनेसेस, और उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स आज कंक्लूड हुए हैं। अलग अलग एक्यूज्ड के अलग अलग लॉयर्स थे जिन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। आज फाइनल डे था आर्ग्यूमेंट्स का। आज हमने एक्यूज्ड परवेश कुमार के बिहाफ पे आर्ग्यूमेंट्स क्लोज किए हैं। आज इस कोर्ट में रसाना केस से संबंधित जो ट्रायल था वो फॉर्मली और टेक्निकली दोनों तरीके से ख़त्म हो गया है। अराउंड 10 तारीख के करीब सवेरे 10 बजे इस केस में फैसला सुनाया जाएगा। जम्मू में गुज़िश्ता रात आग की एक वारदात में 150 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाकसर हो गई है। मराठा मोहल्ला जम्मू में पेश आए इस हादसे में कम से कम 41 रोहिंग्याओं की झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई हैं। आईन शाहिदीन के मुताबिक रात के 1:10 पर एक झोपड़ी से ये आग नमूदार होकर दूसरी झोपड़ियों में फैल गई। लोगों का कहना है कि आग बुझाने वाले अमले के ताखीर से आने की वजह से आग फैलती गई। आग की इस वारदात में किसी जान नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुतासरा लोगों का सारा घरेलू सामान आग की नजर हो गया और ये लोग कुछ भी नहीं बचा सके। पुलिस ने जाए मौके का दौरा करके केस दर्ज कर लिया है। आज सुबह मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों ने मुतासरा लोगों को इमदाद फराहम की। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी मेयर ने जाए मौके का दौरा करके मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उन्हें आर्जी खेमे फराहम किए जाएंगे। इंतजामिया का ये कहना है कि नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। गौरतलब है कि इस इलाके में गुज़िश्ता बरस भी आग की वारदात से कई झुग्गी झोपड़ियां खाकसर हो गई थी। उस हादसे में एक बच्चे की मौत भी हुई थी। आवाज हो रात में जैसा बम फूट रहा है, इधर से आग लगा। हम यहाँ बाहर सोया था, ये मेरा जुग्गे है बाबू। तो फिर 2-3 कम्बल बचाया, उठकर इधर भागा। इतनी तेज से आग थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। गाड़ी वाले को फोन किए तो यहाँ पे जब जल गए तभी गाड़ी वाले आ पाए हैं। अब बहुत इतना भीषण आग थी कि कहने के बाद कोई किसी को कुछ निकालने ही नहीं दिया। सुबह से कोई आए यहाँ पे? हाँ, सुबह से तो आए हैं, नेता से आए हैं, लेकिन आ करके सिर्फ देख करके गए हैं, कुछ
कार्रवाई अभी कुछ नहीं दी है। फॉर्चुनेट रहे कि यहाँ पर किसी तरीके की किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फैमिलीज जो थी उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीफ होगी वो प्रोवाइड की जा रही है। कुछ NGOs भी आगे आए हैं जो कि आप देख रहे हैं खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीजन्स को देखा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर से हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से हुआ है। एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, इंक्वायरी के बाद में पता चलेगा। और ये इसमें पिछली बार भी आग लगी थी, तो काफ़ी सेंसिटिव जगह है, इसमें उसी तरीके से डिसीजन किया जाएगा कि जिससे कि अगली बार किसी तरह का हादसा ना हो। हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके माध्यम से हमारा यहाँ लंगर की व्यवस्था भी स्टार्ट हो जाएगी विद इन टाइम। हमारी जो कपड़े वगैरह जो इनके चले हैं, जो भी हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमने उनको ऐलान कर दिया हुआ है। जितनी भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्किंग में है। कपड़े, खाना पीना और स्पेशली इनको टेंट्स, एकदम से ऊपर से तपती धूप है, इनको हम टेंट्स प्रोवाइड करवा पाएँ, चाहे वो रेड क्रॉस के माध्यम से हो या हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से हो, वो इनको इमीडिएटली प्रोवाइड करवा जाएंगे। करगिल में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स में ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी कायम करने की हुकूमत के फैसले पर एहतजाज जारी है। कोम्बूथांग में वाक़े सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स में कई तलबा और तालिबात ने आज भी एहतजाज किया। तलबा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स में कायम न करने का अपना मुतालबा दोहराया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने हाल ही में सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के अहाते में ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी कायम करने के अहकामात जारी किए हैं। इस फैसले से तलबा में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी अलग मुकाम पर कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस एहतजाज की वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स में क्लास वर्क भी मुअत्तल है। सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को आला हुकाम से रुजू किया है। असल में जो ये मसला हुआ है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लद्दाख में एक स्टेट क्लस्टर यूनिवर्सिटी आ जाएगी, तो हम सब इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन परसों अभी तो मुझे ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना अपनी यूनिवर्सिटी से, ना गवर्नमेंट से, कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ऑपरेशन सैटेलाइट कैंपस करगिल से होगा। ऑफिशियली मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन परसों जब यौम कुदस था, तो जब मैं बैठा था यहाँ, उस दिन छुट्टी भी थी, तो एक जगह गफीर यहाँ आ गया और मुझसे कहा कि आप हमें ये आश्वासन दें मेरी तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से कि दिस कैंपस विल नॉट बी यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द क्लस्टर यूनिवर्सिटी। तलत साहब हमारे वाइस चांसलर, ऑनरेबल चांसलर गवर्नर साहब हैं। हमारी ये कोशिश है कि इनफैक्ट इन नियर फ्यूचर ये पूरा बड़ा फुल कैंपस यूनिवर्सिटी करगिल के नाम से। इसी दौरान LAHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स का मौजू उठाया। खान ने सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के अहाते में क्लस्टर यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला वापस लेने की गवर्नर से अपील की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के अवाम क्लस्टर यूनिवर्सिटी क़याम का खैर मकदम करते हैं, ताहम उसका क़याम सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के अहाते में करने के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के तलबा को पहले से ही कई मसाइल का सामना है, ऐसे में वहां पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी कायम करने से उनके मसाइल में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने अलहदा इमारत में क्लस्टर यूनिवर्सिटी कायम करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक गैर मुल्की खातून सयाह का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सयाह जज्बाती अंदाज में रऊफ अहमद डार को भरपूर खराज अकीदत पेश कर रही है। इस सयाह ने हालिया दिनों जब कश्मीर का दौरा किया था, उस वक्त रऊफ अहमद डार ने उनकी मदद की थी। वाज़ेह है कि राफ्टिंग गाइड रऊफ अहमद डार ने सयाहों को बचाते हुए अपनी जान निछावर कर दी थी। Greet you all from a warm Johannesburg, South Africa. It is great sadness today that I have to speak about a man who has touched my life, my soul, my heart. Someone who has left us so suddenly and so tragically. Rauf Ahmad Dar was one of the kindest people I've met. And he showed me what true hospitality is in Kashmir. And it is because of people like him that I fell in love with Kashmir and I so desperately wanted to come back. I remember meeting Rauf for the first day, who was randomly called by our tour guide GN because he needed help with transport, to transport us while we were in Kashmiri. And he gladly obliged. I didn't know. We didn't know who he was. We didn't know what his plans were. We didn't know if he had made plans. But he gladly obliged and he gave us 2 days of his life. 2 days from morning till night, driving us around and taking us around Kashmiri and showing us the beautiful place that we all fell in love with.
Before we arrived in Kashmir, we received so much negative feedback about this place. But we still came because we didn't think that anything was going to stop us from our total experience in India. And when I came to Kashmir, I honestly have not seen a more beautiful place than this. A heaven on earth with the most beautiful, kind, hospitable people. And the one person that led the pack of kindness, a true angel, a soldier of Allah, and that was Rauf. I am so saddened by his sudden taking. I don't know how to explain how I feel right now, but my heart is in pieces, it's broken. I can only pray for his family right now and trust that Allah will grant them strength and comfort during this time. But for me, Rauf Ahmad Dar was a legend. He was a man that truly left a footprint in your heart. His infectious smile, his beautiful smile, his deep, kind eyes, his ever willing, helping hand. You know, he never let us ladies slip and fall on the snow. He always wanted to hold our hand and then guide us and lead us. He drove so safely and he played us the most beautiful music in his car. I have the fondest memories of Kashmir because of Rauf. And sadly, my next trip to Kashmir, I will definitely come back because that was my plan, but it will not be the same without this beautiful soul. So rest in peace, my dear friend. Always remembered, never forgotten. I trust that you find eternal peace and know this, that you will always be missed. नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कश्मीर में एक हादसा पेश आया था जिसमें राफ्टिंग गाइड रऊफ अहमद डार जो है वो शहीद हुए थे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर सयाहों की जान बचाई थी। आपको बता दें कि उस दिन रोज़े की हालत में जो है वो अपना दिन इख्तिताम कर रहे थे। ऐसे में दो सयाह जो है उनके पास आए और वो चाहते थे कि वो उनको राफ्टिंग करवाए, पर इस हादसे में रऊफ अहमद डार की जान चली गई। आगे बढ़ते हैं। ईद की आमद के साथ ही श्रीनगर के बाजारों में लोग खरीदारी में मसरूफ है। यहाँ के बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। श्रीनगर और दीगर अजला से लोग ईद की खरीदारी के लिए श्रीनगर के बाजारों का रुख करते हैं। श्रीनगर में कई छोटे बड़े बाजार हैं। लाल चौक, गनीखन और जामा मार्केट इनमें ज्यादा मशहूर है। लोग मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। अगरचे 15 रमज़ान के बाद ही इन बाजारों में लोगों की चहल पहल रहती है, मगर ईद करीब आते ही उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। दुकानदारों ने भी तमाम ज़रूरी सामान मैसर रखा है। मज़ा है, अभी तो मज़ा ले रहा है। ये तो ऐसे इसलिए शॉपिंग किया था, थोड़ा कपड़ा वपड़ा लिया था, घर के सामान भी लिया था। तो अभी आप क्या लेने के लिए आए? अभी तो ये छोटे बच्चे के लिए कपड़ा वपड़ा लेने आया था, पला वाला लेने के लिए आया था। बहुत सारे चहल पहल बहुत मची है यहाँ पे और लोग बहुत सारे सामान खरीद रहे हैं। डिस्काउंट्स लगे हैं बहुत सारी दुकानों में, सूट्स पे डिस्काउंट्स लगे हैं और आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल मची है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ईद में हम सब के लिए खुशी भर के लाए। खुशियाँ तो कम ही हालात की वजह से, तो आपको पता ही यहाँ कैसे हालात रहती है, तो हालात ठीक रहते तो फिर खुशियाँ भी बना सकते। जैसे हालात रहेगी वैसे खुशियाँ भी रहेगी। सही बात है। पिछले 2-4 दिन से काम ठीक है बनस्बत जो 10-15 दिन पहले था, जो हाईवे बंद था संडे मार्केट की वजह से, वो भी बिल्कुल फ्लॉप था उन दिनों। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है काम ठीक है इस वक्त। हालात की वजह से और इलेक्शन की वजह से पहले लोग उनके पास पैसे नहीं है तो बहुत कम निकले। इस साल बहुत परेशानी हो गई, माल बहुत रुक गया हमारे पास। ईद में कल ही दिन बाकी है, लेकिन काम बिल्कुल ज़ीरो, जैसे नॉर्मल हमारा काम होता है वैसे ही है। इसलिए इस साल ईद का कोई पूरा जोश नहीं रहा। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने ऐलान किया है कि करगिल के टिम्बस और गुनमंगपुर में शवाल का चांद देखा गया। करगिल खित्ते में कल ईद मनाई जाएगी। इस ऐलान के साथ ही बाजारों में खरीद और फरोख्त बढ़ गई है और लोग ईद की तैयारियों में जुट गए हैं।
श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप और यात्रा के पहले पड़ाव चंदनवाड़ी का दौरा किया। डीसी ने, जो कि जिला यात्रा अफसर भी है, चंदनवाड़ी से मुकद्दस गुफा तक बर्फ हटाने के काम के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने बाद में नुनवन बेस कैंप में यात्रियों की रिहाइश के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बेस कैंप में बिजली और पानी समेत सिक्योरिटी जैसे मामलों पर भी मुतल्लिकीन के साथ तबादला ख्याल किया। पहलगाम के रोवडार ने अपनी जान का नजराना पेश करके सयाहों की जान बचाई और कश्मीरियों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। नाजरीन, यून पहलगाम रोव का आबाई गांव है। यहाँ के लोगों को भी रोव पर फख्र है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त यून गांव में मौजूद है। मुदस्सिर, किस तरह का माहौल यून गांव में देखने को मिल रहा है और कश्मीर के लोगों का इस अजीम शख्सियत के बारे में क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि रूफ डार ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो यकीनी तौर पर काबिल दाद है और उसकी जो मौत है यकीनी तौर पर गम का पहाड़, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है इस पूरे इलाके में, अगर पहलगाम की हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ लोगों में इस बात पर भी फख्र है कि रूफ ने जो है उन इंसानों की जान बचाई जिनका किसी भी लिहाज से न कोई ताल्लुक था, न कोई रिश्ता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जान जो है दांव पर लगा दी और उन दो सयाहों की जिनका ताल्लुक कोलकाता से था तो उनकी जान बचाई। और उसके बाद जो पूरा जो इलाका है, यकीनी तौर पर जब रूफ की जो डेड बॉडी थी वो जुम्मा का जो दिन था, लगभग 5:45 का टाइम था, तो इन लोगों का जो चश्मदीद गवाह है इनका ये कहना है कि जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर आए, राफ्टिंग की गुजारिश की रूफ से। हालांकि जो उनका मामूल का जो काम था वो वाइंड अप होने जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने गुजारिश की रूफ से तो उनने जो उनके पेशेवराना जो फ़राइज़ थे तो उनको वो सामने आए और उसको मद्देनजर रख के जो रूफ ने है उनको राफ्टिंग कराने के लिए हामी भरी। और उसके बाद जो ये बोट है खुद रूफ चला गया और उसके साथ और एक साथी था उसका, और जो 3 राफ्टर्स थे वो दूसरी बोट में थे। तो उसके बाद वो राफ्टिंग के लिए चले गए, लेकिन जो ही राफ्टिंग के लिए बोट दरिया लिदर में चली गई तो पानी का जो बहाव था वो काफ़ी तेज़ था और जो इम्बैलेंस हो गया बोट का, और उसके बाद जो दोनों सयाह थे वो गिर कर दरिया लिदर में जा गिरे। तो ये बताया जा रहा है कि रूफ जो थे वो भी दरिया में गिरे, लेकिन जो उनसे जान जोखिम में डाली, उस वक्त वो अपनी जान को बचा सकता था, वो किनारे पे आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बरक्स उन्होंने किया, तो वो उन दोनों सयाहों के पीछे चले गए, उनको बचाने की कोशिश की, और जिसके बाद जो है उन दोनों सयाहों को बचा लिया गया। लेकिन रूफ जो है, रूफ का ये सफ़र अफसोसनाक साबित हुआ, ये सफ़र आखिरी साबित हुआ। और जो राफ्टिंग जिसका उनके साथ बचपन से लगाव रहा है, और ये राफ्टिंग जो थी आखिरी राफ्ट उनकी जो है वो साबित हुई। और उसके बाद जो SDRF की टीम या फिर NDRF की टीमों की अगर हम बात करेंगे, उनका भी यहाँ पर आना हुआ, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से उनको कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी उतना नहीं हुआ जो रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और उसमें फिर पुलिस भी पेश रही, मकामी लोगों का खासा रोल रहा उसमें, और जो रूफ की डेड बॉडी थी वो दूसरे दिन जो है दरिया से निकाली गई। और लेकिन रूफ की जो ये मौत है उसने यकीनी तौर पर एक जो है पैगाम दिया है पूरी दुनिया को जो कश्मीरियत का है, और ये जो सदियों से रवायत है कश्मीरियत की, जो मजहबी भाईचारे या फिर इंसानियत की अगर हम बात करेंगे, तो उस रवायत को रूफ ने रवा रखा है और अपनी जान जो है जान देकर जो है दूसरों की जान बचाई। और इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो उनके साथी थे आरिफ, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के इंसान थे रूफ, और वाकई तौर पर क्या उन्होंने रूफ ने जिस तरह की कोशिशें बताई जा रही है, क्या ऐसी कोशिशें उन्होंने की थी जो उनकी जान बचाई। जी आप बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त, और जब आपके सामने आए वो टूरिस्ट राफ्टिंग की गुजारिश की, हालांकि वक्त हो चुका था, इफ्तारी का वक्त था, रूफ ने रोज़ा रखा था, उसके बावजूद आप लोग राफ्टिंग के लिए चले गए, तो क्या हुआ था वो पूरा वाक़या सुनाइए। तो एक्चुअली हमारी क्लोजिंग का टाइम था सर, तो हमने राफ्टिंग क्लोज 5:30 बजे की थी, तो पौने 6 बजे रूप साहब को कॉल आई थी कि कुछ क्लाइंट्स आए थे कि हमें राफ्टिंग करवा दो। तो हमें बड़ा शौक है राफ्टिंग करने का, अगर हम बिना राफ्टिंग के घर गए तो हमारी ट्रिप अधूरी रही। तो फिर रूप साहब बड़ा रहमदिल था, तो उसने बोला कोई नहीं चलो हम राफ्टिंग करवाते हैं। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे, राफ्टिंग स्टार्ट की, क्लाइंट को बोट में बिठाया अच्छे से, तो ब्रीफिंग अच्छे से दी, कुछ ही दूर चले तो बोट फ्लिप हुआ। जो गेस्ट बैठे थे वो पानी से बाहर चलाए गए, हम सब पानी से बाहर चले गए। तो फिर भी हमने कोशिश की, रूप साहब ने कोशिश की कि क्लाइंट के पीछे पीछे पड़ा और क्लाइंट को अच्छे से रेस्क्यू किया। बदकिस्मती से अपनी जान नहीं बचा पाया। तो
तो कितनी कोशिश रही, जिस तरह से आपने परसों भी बताया, मैंने भी बात की आपसे कि रूफ की जो है अनथक कोशिश रही जब तक कि टूरिस्ट को बचाया नहीं गया, तो किस तरह की कोशिश रही रूफ की? कोशिश ऐसी रही कि जब टूरिस्ट बोट से बाहर आए तो हम भी बाहर आए थे, हमारी खुद की जान को खतरा था, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम टूरिस्ट के पीछे पड़े, टूरिस्ट को अच्छे से रेस्क्यू किया, तो फिर हम लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन रूफ साहब उसमें नाकामयाब रहा। तो मुझे आप देख सकती हैं जो ये सुना रहे हैं कि ये चश्मदीद गवाह है, ये रूफ के साथी थे, इनकी भी कोशिश रही वो टूरिस्ट की जान बचाने के लिए, और लेकिन उसके बाद जो है उसकी मौत के बाद, हालांकि काफी फख्र है यहाँ के लोगों को रूफ पर, लेकिन उसके बाद जो उसके जो अफरादी खाना है उन पर जो गम का मुसीबत का पहाड़ जो है टूट पड़ा है, और क्योंकि रूफ जो है वाहिद कमा हुआ है अपने घर में, तो उनका जो एक भाई है वो अभी पढ़ाई कर रहा है, एक बहन है और बुजुर्ग जो माँ बाप है, और एक जवान साल जो बीवी है उनको भी वो पीछे छोड़ गया है। लेकिन उसके बाद जो है सरकार पर इनकी नजरें मरकूज है कि किस तरह से सरकार आएगी और जो ये गमजदा खानदान है इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और एक उनके कजन है हमारे साथ रूफ के, तो इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात हैं। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको इस वक्त की कमी की वजह से रोकना पड़ रहा है, और नाजरीन आपने देखा कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जो है रऊफ अहमद डार उनके आबाई गांव यून गांव पहलगाम पहुंचे थे और उनके अहल खाना से बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। माता खीर भवानी स्थापन देवसर और मंजगाम कुलगाम में सालाना त्यौहार मनाने के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। इस हवाले से रिलीफ कमिश्नर टी.के. भट्ट, जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद, माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के विनोद पंडिता के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने दोनों मजहबी मकामात का दौरा किया। उन्होंने अकीदतमंदों के लिए तमाम तर सहूलियात की यकीन दहानी कराई। जो कमिश्नर कश्मीर बशीर अहमद खान साहब को शुक्रिया कि जो लास्ट टाइम हमने मीटिंग करी थी, जो अरेंजमेंट, ये 5 मंदिर हैं, एक तो तुलमुला है, टिकर कुपाड़ा जहां हम कल गए थे, आज ये दिवसर जो खनबरनियन में है, और आज मजगाम भी हम जा रहे हैं, और लखटीपुरा भी जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट ईयर भी और इस बार उससे ज्यादा अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। जहां हमने देखा तो व्यवस्था बहुत की है बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम एंड बाय द तहसील एडमिनिस्ट्रेशन दिवसर जो है, और यहाँ से मजगाम, और इस बार काफी लोग आने की संभावना है दिवसर और इस साउथ कश्मीर के इलाके में, अपनी मातृभूमि में, और इस बार अच्छा रहा और यहाँ की कॉपरेशन भी बहुत अच्छी रही। मैं और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, वो आए और उन्होंने यहाँ पहले भी विजिट किया है। उन्होंने उनकी सरबराही में यहाँ तमाम इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया, हमने भी देखा, और जो यहाँ की संस्था है, जो उसके प्रेसिडेंट है, जो उसके वर्कर लोग हैं, दे आर फुली सेटिस्फाइड कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा। ब्राजलू कुलगाम के मकाम पर महकमे माल ने एक अहम कार्रवाई के दौरान सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा हटाने में कामयाबी हासिल की है। डीसी कुलगाम, तहसीलदार और महकमे माल के अफसरान ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ये अराजी तरक्याती कामों और रिहायशी सहूलियात के काम में लाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने जिले के तमाम तहसीलदारों और अफसरान को हिदायत दी कि वो जिले में रूसी सफेदियों को काटने की मुहिम तेज कर दी। इस सिलसिले में लोगों से कहा गया है कि वो 3 रोज के अंदर खुद ही उन सफेदों को काट दे। बाद में सरकार इन सफेदों को अपनी तहवील में लेकर उनके काटने के लिए दरकार रकूमात मालकान वसूल करेगी। इससे हासिल होने वाली लकड़ी भी सरकार अपनी तहवील में ले लेगी। टंगमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह की मौजूदगी में डीपीएन के यूथ इंचार्ज शेख नदीम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। फारूक शाह ने नदीम का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तकरीब में काफी तादाद में लोग मौजूद थे। शाह ने कहा कि हल्का इंतखाब गुलमर्ग के बाशऊर नौजवानों को अपनी जिंदगी और अपना करियर बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नजर आती है। उन्होंने नौजवानों से वादा किया है कि कामयाबी के बाद नौजवानों के तमाम तर मसाइल हल कर लिए जाएंगे। पहले जो है मैंने डीपीएन में शमूलियत की थी और वहाँ पे जो है मैंने देखा कि हमें डिसीजन मेकिंग में हमारा आज का जो यूथ है वो अक्सर रेस्पेक्ट चाहता है, इज्जत चाहता है, तो जिसके कारण जो है आई फेल्ट सफोकेटेड देयर, आई फेल्ट आइसोलेटेड देयर, कि मुझे लगा कि वहाँ पे उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं, खाली उनको हमारे वोट की ज़रूरत है। और यहाँ पे फारूक शाह साहब के साथ ज्वाइन करके इससे पहले इनके साथ इंटरेक्शन हुई तो मुझे लगा कि ये जो है यूथ को साथ लेकर चलते हैं, यूथ को इज्जत देते हैं और डिसीजन मेकिंग में यूथ को आगे ले जाते हैं, उनसे पहले कंसल्ट करते हैं।
کشمیر میں کئی سالوں سے طلباء کا مختلف مقابلہ جاتی امتحانات کی جانب رجحان بڑھ گیا ہے. وہ IIT JEE اور نیٹ کے امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں. اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. کشمیر میں چھوٹے ٹیوشن سینٹروں کے ساتھ ہی یہاں ملک کے نامی کوچنگ سینٹر کے برانچ قائم ہو چکے ہیں. سری نگر میں آکاش کا تیسرا سینٹر راولپورہ میں قائم کیا گیا ہے. اسے جنوبی کشمیر کے طلباء مستفید ہوں گے. یہ ایک بہت ہی بڑا سائن ہے کہ بچوں کو یہاں کی پڑھائی پسند آ رہی ہے اور دور دور سے بچے آ رہے ہیں. راولپورہ سینٹر آج جو نیا کھولا ہے تو اس سے جو نارتھ اور ساؤتھ کشمیر کے بچے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارا جو سارے سینٹرز ہیں اس میں کمپیوٹر لیب رہتا ہے جس میں سارا ویڈیو لیکچر ڈیجیٹل لائبریری ہوتی ہے اور ہمارے جتنے بھی ٹیسٹ پیپرز ہیں اب وہ اس سال سے کمپیوٹر بیسڈ ہم لوگوں نے کر دیے ہیں کیونکہ IIT کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اس میں بچہ اپنا گھر بیٹھ کے یا سینٹر پہ آ کے لاگ ان کر کے اپنا ٹیسٹ دے سکتا ہے اور ٹیسٹ کے بعد انسٹنٹ رزلٹ پا سکتا ہے اور پورا انالیسز کہ اس کے کون سے کوشچن غلط ہوئے, کس کوشچن میں کیا ٹائم لگایا, تو بہت ڈیٹیل انالیسز ہم لوگ آج کل بچوں کو دے پا رہے ہیں. ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے ایک میٹنگ منعقد کی جس میں بانڈی پورہ اور گاندربل کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے ضمن میں جائزہ لیا گیا. دونوں اضلاع کے DDCs نے ڈویژنل کمشنر کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے مختلف پروجیکٹوں کی تفصیلات فراہم کی. اس موقع پر بصیر احمد خان نے کاموں کا مسلسل جائزہ, عام افراد سے فیڈ بیک اور پنچایتی نمائندوں سے رابطے میں رہنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے. بانڈی پورہ سری نگر سڑک پر سنبل کے قریب ہاجن بلاک میں کام کر رہی آشا ورکروں نے احتجاج کیا. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ پچھلے 6 ماہ سے ان کا مشاہرہ بند پڑا ہے. آشا ورکروں کے لیے مخصوص دیگر کچھ مراعات سے بھی انہیں محروم رکھا جا رہا ہے. احتجاجیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 1 ماہ کا مشاہرہ واگزار کرنے کے بجائے ان کے تمام بقایا مشاہرے کو واگزار کیا جائے. آریپل ترال میں چندری نالہ کے قریب آریپل ناگ کے نام سے مشہور قدرتی چشمے کی خستہ حالی سے متعلق نیوز 18 اردو پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے. محکمہ رورل ڈیولپمنٹ آریپل نے چشمے کی شان رفتہ بحال کرنے کے حوالے سے اقدام کیے ہیں. اس کو بچانے کے لیے بانڈ بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. لوگوں نے محکمے اور نیوز 18 کا شکریہ ادا کیا. گاندربل کرکٹ ایسوسی ایشن نے BCCI کے آئین کے مطابق انتخابات کراتے ہوئے نئی ایگزیکٹو باڈی تشکیل دی ہے. سائم مصطفیٰ کو ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے. انہیں 43 ووٹ حاصل ہوئے. JKCA کے عہدیداروں کے علاوہ کرکٹ پرویز رسول بھی اس موقع پر موجود تھے. ضلع بھر میں 80 ٹیموں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا اور کھیل کے فروغ میں JKCA کی کارکردگی کی ستائش کی. سوپور کے سیر جاگیر علاقے میں نند کشور مہاراج کے استھاپن پر سالانہ ہون کا انعقاد کیا گیا. جموں اور وادی کے دیگر علاقوں کے پنڈتوں نے اس ہون میں شرکت کی. MLC گرداری لال رائنا اور سریندر امبارداری نے بھی اس میں حصہ لیا. ساماجک وکاس سنستھان کی جانب سے اس ہون کا انعقاد کیا گیا. ملک اور وادی میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی. گرداری لال نے کہا کہ انہیں اپنے گاؤں والوں سے ملنے کا موقع ملا اور پرانی یادیں تازہ ہو گئی. سنستھان کے چیئرمین مہاراج کرسٹن پنڈتا نے تعاون کرنے پر ضلع انتظامیہ اور اکثریت طبقے کا شکریہ ادا کیا.